This session is about OD PYQs. So far, if you go to my channel, so you will find the previous year questions like 2022 का ये हमने किया था 2020 इक्वल हो जाएगा. So this is like I guess ये तो 2021 का है. Today we are going to discuss it. और this paper, this paper I guess this is from 2022. Yes, 2022 है ना. So इसमें let me go through. तो ये question we have done है ना. On YouTube I have taught you this. This also we have done in class. ये self orthogonal trajectory. Then the question from ordinary differential equation. This also we have done. Y is equal to x is one of the solutions. में एक solution हमें नॉन रहता है और we can find one solution and then y is equal to u into v we can take by considering कि वो basically. Now speaking about this one, इसमें क्या है, वी आर गिवन द राइट हैंड साइड जो है इट इज़ डिफाइंड डिफरेंट इन डिफरेंट इंटरवल्स. सो ये एक तरह से दिस इज़ काइंड ऑफ न्यू. पहली बात तो दिस इज़ फ्रॉम लाप्लास हम कर चुके हैं एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन ऑन यूट्यूब बट उसमें वॉइस नहीं था. सो लेट मी रिपीट दिस अगेन. y डबल डैश माइनस 3y डैश y double dash minus 3y dash plus 2y is equal to ht. So we have y double dash minus 2y dash y double dash minus 2y dash plus 2y is equal to ht plus 2y is equal to ht. And ht is given to me as 2 when 0 less than t less than 4 and 0 when t is greater than 4. y0 is given to be 0 and y dash 0 is given to be 0 again. So as usual, normally what we do, we take Laplace on both the sides. In case in the questions based on Laplace हम दोनों तरफ Laplace लेते हैं. So I'll take Laplace of y double dash minus twice Laplace of y dash plus 2 times Laplace of y. 2 times Laplace of y is equal to Laplace of the right hand side that is ht. इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे. दिस इज एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो माइनस 2 इंटू इट इज़ एस लाप्लास ऑफ y माइनस वाई ज़ीरो. ठीक है. एंड देन देर इज़ 2 plus 2 times Laplace of y and right hand side is Laplace of ht so far. Now we need to find the Laplace of right hand side as well. How can we find the Laplace of right hand side? Laplace of ht is equal to, actually the problem here is that ht is defined like this. तो इसमें आपको ये कन्फ्यूज़न रहेगी कि मुझे 2 का लाप्लास लेना है या 0 का लेना है. So in such questions always proceed by the definition. Now what is the definition of Laplace? Whenever we have to find Laplace of ft, then we integrate it from 0 to infinity e to the power minus st ft dt. Clearly remember it है ना. This was the formula of Laplace. So हम यहाँ पर इसको 0 to infinity में ht को integrate कर देंगे along with e to the power minus st dt. Now this is equal to 0 to infinity ht 0 to 4 में 2 वैल्यू ले रहा है. So I'll break it, I'll split the interval 0 to 2, 0 to 4 ht is 2 e to the power minus st dt and then 4 to infinity it is just taking 0 value. So no worry, ये तो 0 ही हो जाएगा. Okay, now solve this integration. जैसे हमने एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास फाइंड किए थे ना द वे वी फाउंड द लाप्लासेस ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस. सो इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड द लाप्लास हियर. सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ इट इज e to the power minus st divided by minus s
फ्रॉम 0 to 4. सो ट्वाइस वैल्यू पुट करेंगे t की जगह पर. सो e to the power minus 4s डिवाइडेड बाई माइनस s and then minus e to the power 0 divided by minus s. So what is the value that we received? Twice minus e to the power minus 4s divided by s plus 1 by s plus 1 by s. ये आ गया हमारे पास. अब एक्चुअली इसमें भी s है और यहाँ पर भी s है, तो एक s को हमें चेंज करना पड़ेगा. सो लेट्स चेंज, कोई सा भी s आप चेंज. वैसे चेंज क्यों करना है? फंक्शन ऑफ एस ही तो आता है. लाप्लास ऑफ एफ टी इज फंक्शन ऑफ एस ओनली एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर एस आता है. सो देयर इज़ नो नीड टू चेंज, नो नीड टू चेंज एज सच. ओके, सो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई. नाउ व्हाट इज़ वाई ज़ीरो गिवन टू मी? व्हाट इज़ वाई ज़ीरो गिवन टू मी? y0 is 0, y dash 0 is also 0. So it will be s square Laplace of y minus 2s Laplace of y plus 2 Laplace of y minus 2s Laplace of y plus 2 Laplace of y plus 2 Laplace of y. कुछ बचा तो नहीं है ना? So it is s square minus 2s and then plus 2 times Laplace of y. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन. यही था ना? इट वॉज 3, इट वॉज माइनस 3 वाई डैश. ये 3 था एक्चुअली. सो कोई इशू नहीं है. सो इट वॉज 3 ईयर. सो इट वॉज 3 ईयर. यहाँ पर ये 3 था. ओके, सो ये आ जाएगा माइनस 3s लाप्लास ऑफ वाई प्लस 2 लाप्लास ऑफ वाई. दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज ट्वाइस minus e to the power minus 4s divided by s plus 1 by s plus 1 by s. Understood? Now if I take Laplace of y common here, then it is s square minus 3s plus 2 is equal to minus 2 by s e to the power minus 4s plus 2 by s. So Laplace of y is equal to minus 2 by s into s square minus 3s plus 2 and e to the power minus 4s plus 2 by s into s square minus 3s plus 2. Now I can factorize it. So this is equal to minus 2 e to the power minus 4s divided by s into s minus 1 into s minus 2 plus 2 by s into s minus 1 into s minus 2. ठीक है. सो दिस, सो y क्या आएगा? इनका लाप्लास इनवर्स. सो लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2 e टू द पावर माइनस 4s. पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल लो इसके. आई मीन 1 बाई एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2, एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2. पहले s को 0 पुट करेंगे तो I'll get 1 by 2. So 1 by 2s. Now put s is equal to 1. So we'll get minus 1. So 1 minus 1 by s minus 1. Now put s is equal to 2. So you'll get plus 1 by 2. So plus 1 by 2 into s minus 2. तो आ गया 1 by 2s minus 1 by s minus 1 plus 1 by 2 into s minus 2 plus 2 times. अगेन इसका भी सेम ही होगा. So 1 by 2s minus 1 by s minus 1 plus 1 by 2 into s minus 2. 1 by 2 into s minus 2. ठीक है. So y is equal to Laplace inverse of minus 2 e to the power minus 4s minus 2 e to the power minus 4s. क्यों ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए? I mean दोनों तरफ सेम ही तो एक्सप्रेशन है. I can combine them like this. 1 by 2s minus 1 by s minus 1 plus 1 by 2 into s minus 2. 1 by 2 into s minus 2. कोई इशू नहीं ना? चलो, अब हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है. वैसे तो कंबाइन करना वॉज नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि लाप्लास इन्वर्स तो सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा हमें. So Laplace inverse of 2 goes to 1 by 2s means 1 by s minus Laplace inverse of
2 by s minus 1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस 2 है ना, एंड देन माइनस 2 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई 2s है ना, एंड देन माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2e टू द पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई s माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई s माइनस 2, s माइनस 2. सो 1 बाई एस का लाप्लास इनवर्स क्या होता है? इट इज सिंपली 1. 1 का लाप्लास क्या होता है? 1 बाई एस माइनस दिस इज 2 ई टू द पावर टी, दिस इज 2 ई टू द पावर टी प्लस दिस इज ई टू द पावर 2t, ई टू द पावर 2t माइनस ये 2 से 2 गोट कैंसल्ड आउट. देखो इट इज़ ई टू द पावर माइनस 4s है ना. 1 बाई एस का लाप्लास इनवर्स होता है t, बट बिकॉज देर इज़ एक्सपोनेंशियल हेयर ई टू द पावर माइनस 4s है. अच्छा मैंने आपको यूनिट स्टेप फंक्शन करवाया था ना, ई टू द पावर माइनस as. सो इसका लाप्लास क्या आएगा? यूनिट स्टेप फंक्शन एच टी माइनस 4, एच टी माइनस 4, एच टी माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स what will be the Laplace inverse of this? देखो e to the power माइनस 4s प्लस इसको तो आप सिंपली भी कर सकते हो, कॉन्वोल्यूशन से भी हो जाएगा ये तो. जैसे कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है हमारे पास? इट इज़ लाप्लास इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 4s बाई एस माइनस 1 है ना. बट इसमें कॉन्वोल्यूशन कैसे लगेगा? कॉन्वोल्यूशन नहीं लगेगा एक्चुअली. रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस दैट लाप्लास ऑफ एच टी माइनस ए, एच टी माइनस ए इज इक्वल टू 1 by s e to the power minus as. This I told you. That means Laplace inverse of 1 by s e to the power minus as is equal to h t minus a. तो यहाँ तो ये सिंपल था. I mean it was just e to the power minus 4s by s. I mean if I ask you e to the power minus 4s by s का Laplace inverse क्या होगा? Then that is equal to unit step function t minus 4. a here is 4, a here is 4. अब यहाँ क्या है? इट इज़ दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल एक्चुअली. लाप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई s माइनस 1. सो जनरली 1 बाई s माइनस 1 का लाप्लास इनवर्स क्या होता है? e टू द पावर t ना, एंड a here is 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? h e टू द पावर t माइनस 4 ये आ जाएगा ना. सिंपली इट इज़. So it will be 2e to the power t minus 4, 2e to the power t minus 4 माइनस अगेन यहाँ पर 1 by s माइनस 2 है. सो 1 by s माइनस 2 का लाप्लास इन्वर्स होता है e to the power 2t, एंड बिकॉज हियर इट इज़ 4, सो a इज इक्वल टू 4, सो इसका आ जाएगा e to the power 2t minus 4, e to the power 2t minus 4. So it will be like this. Whenever this is, whenever there is, in fact even if you don't write this h na, it will work. I mean that's understood, that's understood. So आप इसको simply t minus 4 भी लिख सकते हो. You can write h t minus 4, you can write u t minus 4, all will work here. सारा सही है इसमें, ठीक है. So always remember Laplace inverse e to the power minus as fs is equal to f of t minus a, f of t minus a, where ft is the Laplace inverse of fs, Laplace inverse of fs. So this you have to take care of. Laplace inverse of, whenever I mean ft is the Laplace inverse of fs, then e to the power minus as into fs will have Laplace inverse as f of t minus a, and that's what we have done here. ठीक है. तो जैसे 1 बाई एस का लाप्लास इन्वर्स होता है टी, बट बिकॉज देर इज ई टू द पावर माइनस 4s विद इट, सो आई हैव टू टेक टी माइनस 4 है ना.
t-4। इसका ना सेकेंड वैल्यू 0 ही होता है, सो यू कैन सिंपली टेक t-4। अगर यहाँ पर 1/s-1 है तो इसका लाप्लास इनवर्स e⁻t होता है, सो वी हैव टू टेक e⁻t-4, देन e⁻2t-4, लाइक दिस। सो ये नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो वेन एवर देर इज द राइट हैंड साइड इज गिवन एज कि डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट डोमेन, तो उस केस में जो उसका लाप्लास है वो आपको बाय स्प्लिटिंग द इंटेग्रल फॉर्मूले से फाइंड करना होगा। बाय स्प्लिटिंग द इंटेग्रल आपको फॉर्मूले से फाइंड करना होगा। चलो ठीक है, तो एक तो ये कन्फ्यूज़न था, सो दिस इज सॉर्टेड। नाउ नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 2022 का था ना ये, 2000, तो ये हो गया। उसके बाद नाउ दिस वन, ये भी आई गेस हो गया था। दिस इज कोशी आइलर इक्वेशन, दिस इज कोशी आइलर इक्वेशन। देखो उसी लेक्चर में मैंने शायद ये करवाया है पैरा, ये तो पहले ही हो गया था एक्चुअली। एक लेक्चर था ना जिसमें वॉइस नहीं थी, इसमें तो वॉइस है। दिस वॉज लास्ट पार्ट, सो इसी में मैंने वो किया हुआ है, वो वाला जो क्वेश्चन है। ये तो सेल्फ ऑर्थोगोनल वाला है, दिस वन है ना। सो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रॉम हेयर, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुकी हूँ द मेथोडोलॉजी। So this is Cauchy-Euler form where you have to take 3x plus 2 as e to the power z. In fact in class as well मैं ये आपको करवा चुकी हूँ। So overall I want to say that 2022 is all done. Now coming to 2021, 2021 ODE। चलो सेक्शन बी हम लोगों को देखना है। ओके, दिस इज सेक्शन बी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहाँ से है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच टाइप इज इट, कौन सा टाइप है ये। So which form is it? It's second order differential equation with constant coefficient, second order linear differential equation with constant coefficient. यहाँ पर 1 है, here the coefficient is 2. I mean this is like the simplest type of equation. So इसको लिखेंगे, we have d square plus 2 into y is equal to x square e to the power 3x, x square e to the power 3x plus
e to the power x cos 2x, e to the power x cos 2x. All right, now let's evaluate it. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई. सो फॉर सी एफ आई नीड टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो एम स्क्वायर प्लस 2 इज 0, सो एम स्क्वायर इज -2, सो एम इज प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा. सो वी हैव द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज c1 cos रूट 2x प्लस c2 sin रूट 2x, c2 sin root 2x. Now for pi, 1 by d square plus 2 into x square e to the power 3x plus 1 by d square plus 2 e to the power x into cosine 2x, e to the power x into cosine 2x. शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी बिकॉज एक्सपोनेंशियल साथ में है, तो d will get changed into d plus 3, d प्लस 3 में चेंज हो जाएगा. सो 1 बाई डी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर 3x विल कम आउट एक्स स्क्वायर प्लस, एंड यहाँ पर भी आई नीड टू चेंज डी एज डी प्लस 1. सो डी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 एंड ई टू द पावर एक्स आउट एंड कोस 2x एज इट इज. ओके, सो इट इज ई टू द पावर 3x 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस e to the power x into 1 by d square plus 2d plus 3 cosine 2x, cosine 2x. Now what does the rule say? The rule says that यहाँ से d का smallest power बाहर लो. 11 is the smallest power of d. I mean 11 में d की पावर 0 है ना, so it is 1 plus d square plus 6d by 11 x square plus e to the power x. And here d square to be substituted as -4. So it will be 1 by -4 plus 2d plus 3 cosine 2x, cosine 2x. All good? So this is equal to e to the power 3x by 11, and we will do it by binomial expansion. D square plus 6d by 11 inverse into x square plus e to the power x, and it is 1 by 2d minus 1. Rationalize. Hi everyone. So today's topic of discussion is formation of. ये कहाँ से चल गया? I don't know. So e to the power x 2d plus 1 divided by 2d plus 1 cosine 2x, cosine 2x. चलो, so this is equal to e to the power 3x by 11. अगर आप इसको expand करोगे तो plus minus we will have to take alternate sign. d square plus 6d by 11 plus 1 by 21, 121 d square plus 6d whole square. If you think ये fast है speed, तो मे बी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है. 2d plus 1 डिवाइड बाई 4d स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोसाइन 2x. आई मीन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्लियरली समझ आएगा व्हाट आई एम डूइंग हियर. सो दिस इज e to the power 3x by 11. टेक x स्क्वायर इनसाइड, सो इट इज़ x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d बाई 11 इंटू एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर क्या है? 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा. वंस इट इज़ 2x, देन इट इज़ 2, देन 0 हो जाएगा. सो क्या कोई टर्म ऐसी है जो मुझे यहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू दे सकती है? d to the power 4 विल नॉट गिव मी नॉन ज़ीरो वैल्यू. देन d स्क्वायर, इट इज़ 36d स्क्वायर. 36d स्क्वायर विल गिव मी नॉन ज़ीरो वैल्यू, 36d स्क्वायर. देन d क्यूब आ जाएगा तो वो तो मुझे ज़ीरो वैल्यू देगा. एक्स स्क्वायर प्लस e to the power x into 2d plus 1. Now again d square to be substituted as -4, so -16 minus 1 cosine 2x. Understood? Cosine 2x. So this is equal to e to the power 3x by 11 x square minus 1 by 11. 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 मिलेगा. Once differentiation it is 2x, so it is 12x. 12x प्लस 1 by 121, ये आ जाएगा 72. 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 by 17 e to the power x 2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x प्लस cos 2x प्लस cos 2x. So this is equal to e to the power 3x divided by 11 into x square minus 2 by 11
minus 12x by 11 plus 72 by 121. Hopefully the calculation is correct. Once e to the power x, यह आ जाएगा minus 4 sin 2x, because 2d means derivative of this function with respect to x plus cosine 2x plus cosine 2x, and this is equal to e to the power 3x divided by 11. And if I take 121 as LCM, then I'll have 121x square minus 22 minus 12 into 11, 132x plus 72 minus 1 by 17 e to the power x, and it is minus 4 sin 2x plus cos 2x plus cos 2x. So ये आ गया e to the power 3x divided by 11, 121x square minus 132x plus 50 divided by 121 minus 1 by 17 e to the power x minus 4 sin 2x plus cos 2x, and ये मेरा pi है. This is my particular integral. Now you can add CF and pi, and that will be our final solution. That will be our final solution. So you can just underline it or put it in a round bracket or rectangle, whatever, but do highlight the answer while during the examination. That will leave a good impression, क्योंकि many a times examiner जो evaluate करेगा उसके पास final answer होता है, so make sure आप उसको highlight करो. Done it is? So this is done. Now next question. अरे वाह, next question भी same ही है. it is second order with constant coefficients, but आपको लाप्लास से करना है ना, लाप्लास से करना है. So it is y double dash plus 4y. So next question. Let's quickly go through it. Y double dash plus 4y is equal to e to the power minus 2x sin 2x sin 2x. y0 is 0, y dash 0 is 0. ठीक है. Solution. If you are not comfortable with x, you can simply replace x by t, क्योंकि लाप्लास में हम t वेरिएबल लेते हैं. बाकी if you are comfortable, no issue with that. So x को t पुट कर दो, plus 4y is equal to e to the power minus 2t sin 2t. Now take Laplace on both the sides. Laplace of y double dash plus 4 times Laplace of y is equal to Laplace of e to the power minus 2t sin 2t. ठीक है. So Laplace of y double dash is s square Laplace of y minus s y0, but y0 is 0, तो लिख लो. लिखने में क्या जाता है, y dash 0 plus 4 times it is Laplace of y, it is equal to, now what is the Laplace of this function. यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी. सो पहले तो लाप्लास ऑफ साइन 2t लिख लो. साइन 2t का लाप्लास मेरे पास होता है 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट आई नीड e टू द पावर माइनस 2t साइन 2t. सो s विल गेट चेंज्ड इनटू s प्लस 2. सो s माइनस ए में चेंज हो जाता है ना, सो ये s प्लस 2 में चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बी द लाप्लास ऑफ this particular function. So right hand side is 2 by s plus 2 whole square plus 4. Now if I take Laplace of y common, बीच वाली तो सारी terms 0 हो जाएंगी, because y0 is 0 and y dash 0 is also 0. s plus 2 whole square plus 4. So Laplace of y is equal to 2 by, ये आएगा s square plus 4s plus 8 and into 1 by s square plus 4. So you need to find the Laplace inverse of this. So y is equal to Laplace inverse of 2 divided by s square plus 4s plus 8 into s square plus 4. ये I mean बहुत सिंपल है. अब पार्शियल फ्रैक्शंस कर लो. So 1 by can be written as as plus b plus cs plus d s square plus 4. तो ये आ जाएगा इफ़ आई टेक एलसीएम as plus b
ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8. कंपेयर द कोफिशिएंट्स. कंपेयर द कोफिशिएंट्स. एस क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो. जैसे यहाँ से आएगा ए, फ्रॉम हेयर इट विल बी सी. सो ए प्लस सी इज 0. नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर. सो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से बी आएगा और यहाँ से एक तो प्लस डी आएगा एंड देयर विल बी 4c एज वेल. प्लस 4c इज इक्वल टू 0. कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एस. सो फ्रॉम हेयर इट विल बी 4a and from here it will be 8c plus also here it will be 4d is equal to 0. Now the constant term from here it will be 4b, from here it will be 8d plus 8d is equal to 1. ये है. Now these are the equations I have. So from here a is equal to minus c, a is equal to minus c ना. और यहाँ से इफ़ आई चेंज ए एंड सी, इफ़ आई पुट ए एज माइनस सी, तो ये आ जाएगा माइनस 4c प्लस 8c प्लस 4d इज 0. सो फ्रॉम हेयर आई गेट d एज इक्वल टू माइनस 4 माइनस सी. d माइनस सी आ गया, a माइनस सी आ गया. यहाँ से d को माइनस सी पुट कर दो. सो b माइनस सी प्लस 4c इज 0. सो फ्रॉम हेयर आई गोट b एज इक्वल टू माइनस 3c. ठीक है, लास्ट में अब पुट करके c मिल जाएगा मुझे. सो b को माइनस 3c पुट करेंगे. सो माइनस 12c, d इज़ माइनस c, सो माइनस 8c इज इक्वल टू 1. सो c आई गोट एज माइनस 1/20. c माइनस 1/20 है तो d आ गया 1/20, a आ गया 1/20, b आ गया 3/20. है ना, 3/20. यार देख लो एक बार. आई मीन दिस शुड नॉट बी रॉन्ग बिकॉज आवर आंसर डिपेंड्स अपॉन इट. सो a प्लस सी, हियर एस क्यूब का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एस क्यूब का कोफिशिएंट c. सो a प्लस सी इज 0. देन ए एस स्क्वायर यहाँ बनेगा नहीं, बी एस स्क्वायर बनेगा. सो b देन डी एस स्क्वायर करेक्ट, देन 4c दिस इज ऑल्सो करेक्ट है ना. सो b प्लस डी प्लस 4c. देन s का कोफिशिएंट हियर इट इज़ 4a, s का कोफिशिएंट हियर इट इज़ 8c and then 4d as well. So this is 0. Then finally 4b plus 8d. I guess equations are all correct. अब रिलेशंस देखो, a यहाँ से आ गया माइनस सी. सो यहाँ पर मैंने a को पुट किया माइनस सी. सो 4c प्लस 4d 0. सो d इज़ ऑल्सो माइनस सी. d को यहाँ माइनस सी पुट करोगे यू विल गेट b एज माइनस 3c. सो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 12c माइनस 8c इज़ 1. सो माइनस 20c इज़ 1. सो c इज़ माइनस 1/20. सो अकॉर्डिंगली अब यार अब ये बहुत सिंपल हो गया है. आई मीन y इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ as प्लस b मीन्स 1/20s प्लस 3/20 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8. एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8. हालांकि इट्स मच ऑफ ए टास्क. कितने मार्क्स में और ये 10 मार्क्स ओनली. प्लस 2 टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ cs प्लस d प्लस 1/20. और नीचे क्या था, इट वॉज एस स्क्वायर प्लस 4. यही था ना. हाँ, दिस वॉज इट. 2 दोनों के साथ आएगा. So I can take 1/20 out. So 2/10 लाप्लास इनवर्स इट इज़ s प्लस 3. नीचे वाले को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 लाइक दिस. प्लस 2/20 लाप्लास इनवर्स इट इज़ माइनस s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. सो दिस इज़ 1/10. आई टोल्ड यू कि वेन एवर देर इज़ s प्लस 2 तो ऊपर मुझे उसको ब्रेक करना पड़ेगा एज s प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4.
plus 1 by 10 separating it as well minus s by s square plus 4 plus 1 by 10 Laplace inverse of 1 by s square plus 4 1 by s square plus 4. ओके सो दिस इज़ 1 बाई 10. देखो यहाँ शिफ्टिंग लगी हुई है, आई मीन इसको भी सेपरेट ही करना पड़ेगा पहले तो हमें, शिफ्टिंग तो लगी हुई है. प्लस 4 प्लस 1 बाई 10 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, माइनस 1 बाई 10 लाप्लास इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4 plus 1 by 10 Laplace inverse of 1 by s square plus 4. Now this is like the well prepared meal. आपको just इसको I mean you have to eat it. So tell me the answer. So 1 by 10 देखो अगर s plus 2 नहीं होता, if it would have been s by s square plus 4, तो इसका Laplace inverse क्या होना था, cosine 2t. But now the shifting has been done, s plus 2s, so e to the power minus 2t cosine 2t आएगा. Plus 1 by 10 सेम goes with this. अगर यहाँ पर प्लस 2 नहीं होता, जस्ट 1 by s square plus 4 होता, तो it would have been sin 2t by 2. But shifting has been done, so e to the power minus 2t sin 2t by 2 minus 1 by 10. Here there is no shifting at all, so it is simply cosine 2t. Cosine 2t plus 1 by 10. Here also no shifting has been done, so it is sin 2t by 2. You can combine them and this will be your final answer. Combine ये कर लेना आप. चलो, and we are done with the second question as well. Moving on to the next question. So this is also done. Fifth का B part. अब ये 6 का बी पार्ट. सो 10x माइनस 3 कोस एक्स, ये कौन सा वाला टाइप है? दिस इज़ नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. दिस इज़ नॉट ऑल्सो कोशी आइलर. तो ये कौन सा है जिसमें पी क्यू आर के रिलेशन से हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है और हम दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं. ठीक है, 15 मार्क्स का. चलो क्वेश्चन क्या कहता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 cos x dy by dx प्लस 2y कोटेंजेंट स्क्वायर x. कोस स्क्वायर x है, कोटेंजेंट स्क्वायर x, इट इज़ कोस स्क्वायर x, एंड दिस इज इक्वल टू कोस टू द पावर 4x. So our first task is to convert it into standard form. Standard form looks something like this, plus p dy by dx plus qy is equal to r. So it is already in standard form. I mean इसका coefficient 1 होना चाहिए, and there is 1 here. So it is already in standard format. So what do I need to do now? हमें पी क्यू आर को extract करना है. p is equal to 10x minus 3 cos x, which can be written as, I mean लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसको as it is भी छोड़ सकते हो. q क्या है, 2 cos square x है, एंड r इज इक्वल टू कोस टू द पावर 4x. अब याद हो अपने पास जो रिलेशंस थे वो क्या थे, जो पी क्यू आर के रिलेशंस थे वो क्या थे. इनफैक्ट ये एक्चुअली उसमें से है ही नहीं. अपने पास पी क्यू आर के तो कुछ ही रिलेशंस थे ना, 1 माइनस पी प्लस क्यू वॉज देयर, पी प्लस क्यू एक्स वॉज देयर. दिस इज़ फ्रॉम जेड वाला टाइप. जेड वाले टाइप में क्या होता है कि वेन एवर क्यू इज़ द स्क्वायर ऑफ सम फंक्शन, whenever q is the square of some function, remember that. So here q is square of some function, है ना. तो q here is 2x cos square x. तो ऐसे केस में हम एक वेरिएबल लेट करते हैं विच इज़ अवर न्यू वेरिएबल z, और z की वैल्यू क्या होगी. ये एक्चुअली ऐसे होता है, वी हैव टू कंसिडर डी जेड बाई डी एक्स एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, अंडर रूट ऑफ जो आपके पास 2fx या फिर kfx जो है, आई मीन जो q है बेसिकली. ओके, सो वी हैव टू कंसिडर dz बाई dx एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 cos square x. देखो ये टाइप में q विल बी इक्वल टू सम kfx, है ना, सम kfx.
So you have to consider dz by dx as equal to under root kfx. Ignoring the negative sign, हमें बस positive sign लेना होता है. So it is under root 2 cos x. This is dz by dx. So यहाँ से हमें z मिलेगा. So z क्या आ गया? We have done it in class. We have done so many questions based on it. So z is equal to integration of this. So it is equal to root 2 sin x. No constant of integration to be taken. So root 2 sin x will be my z. अब यहाँ पर प्लेस कर दो. So p1 क्या आ जाएगा? What is d square z by dx square? dz by dx is root 2 cos x. और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया माइनस रूट 2 साइन एक्स. माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस p जो यहाँ पर है. सो इट इज़ 10x माइनस 3 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स विच इज़ रूट 2 कोस एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स. 2 साइन स्क्वायर एक्स. इसको सिंप्लीफाई करो पहले. If we simplify it, we will get minus root 2 sin x plus root 2 sin x plus root 2 sin x, and then it is minus 3 root 2 cos square x. Minus 3 root 2 cos square x divided by 2 sin square x. 2 sin square x. सही है क्या ये? So it is d square z by dx square plus p dz by dx divided by dz by dx whole square. ये dz by dx whole square नीचे cos square x आएगा ना. क्या ही गड़बड़ किया है. So it is cos square x. It is cos square x. So overall I'll get minus 3 by root 2 as my value. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा minus 3 by root 2. Minus 3 by root 2. नाउ Q क्या होता है? Q इज इक्वल Q1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वाज Q? इट वाज 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर विल बी 2 cos स्क्वायर एक्स. सो इट इज जस्ट 1, है ना. नाउ व्हाट इज R1? R1 is also R by dz by dx whole square. Q1 and R1 are very simple, है ना. R by जेड एक्स एक्स होल स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो R by जेड एक्स एक्स. ये Q बाई एंड ये R बाई. सो R क्या था हमारा? R वॉज आई गेस्ट कोस 4x ना. कोस टू द पावर 4x. कोस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स. सो इट इज इक्वल टू cos 1 by 2 cos square x. 1 by 2 cos square x. Now p1, q1 and r1 I have everything. So my equation will be d square y by dz square minus 3 by root 2 dy by dz p1 into dy by dz plus q1 into y is equal to right hand side, that is 1 by 2 cos square x. अब इसमें ना रूट 2 का इशू रह गया. जनरली रहता नहीं है. जनरली रूट 2 का उतना इशू होता नहीं है. तो या तो आप क्या करो ना, रूट 2 को ड्रॉप कर दें. तो आई मीन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप के लो. यू मे ड्रॉप दिस के. ये के आप ड्रॉप भी कर सकते हो, दिस कांस्टेंट. जैसे यहाँ पर क्यू इज़ 2 cos स्क्वायर एक्स. सो आई कैन सिंपली टेक cos स्क्वायर एक्स का अंडर रूट. उससे क्या होगा ना, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगी चीज़. So it will be just cos x. So let's delete root 2. Otherwise it will only lead to complexities. So root 2 को delete कर दो. Root 2 here deleted. So dz by dx is just cos x. So यहाँ पर भी no root 2. यहाँ पर भी no root 2. और नीचे भी फिर 2 नहीं आएगा. नीचे भी 2 नहीं आएगा. ये 2 नहीं आएगा. ये root 2 नहीं आएगा. ये root 2 नहीं आएगा. So इससे मेरे पास जो p1 है वो सिर्फ 3 आ गया. सो वेन एवर यू गेट सच इरेशनल नंबर ना, तो उसको ड्रॉप कर देना, कांस्टेंट मत लेना. तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स जस्ट. सो ये आ जाएगा 2. Q will be 2. Q1 will be 2 in that case.
एंड R1 क्या आ जाएगा इन दैट केस, बिकॉज देर इज़ नॉट टू हियर, सो इट विल जस्ट बी cos square x. सो देर इज़ नॉट टू, ये नहीं आएगा, एंड Q1 इज़ 2. सो दिस विल बी माई फाइनल इक्वेशन. दिस इज माई फाइनल इक्वेशन, बिकॉज इन द एंड जो इक्वेशन बचेगी ना, द इक्वेशन दैट यू विल गेट, द न्यू इक्वेशन, इट विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट. वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. सो हर किसी में इसी तरह की इक्वेशन बचती है. सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स. ठीक है. सो आई कैन राइट इट एज d square minus 3d plus 2y is equal to cos square x, where d is equal to d by dz. Here the variable is z, point to be noted. So इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे? m square minus 3m plus 2 is 0. So it is m minus 1 into m minus 2 is 0. So I got the roots as 1, 2. So complementary function is c1 e to the power z plus c2 e to the power 2z. Now z is my sin x. क्या किया मैंने यहाँ पर? रुको रुको रुको, सही है. दिस इज करेक्ट. जेड इज साइन एक्स ना. जेड क्या आया था? जेड वॉज साइन एक्स. सो इट इज माइनस 3m plus 2. सो c1 e to the power sin x plus c2 e to the power 2 sin x. c2 e to the power 2 sin x. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. नाउ पी आई क्या आएगा? 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2. अब यार हियर d इज d बाई डी जेड, सो राइट हैंड साइड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू जेड ना. सो इनफैक्ट जब सब कुछ जेड में है, हियर द वेरिएबल इज जेड, हियर द वेरिएबल इज जेड, हाउ इज इट एक्स? राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ जेड ओनली. सो कोस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज जेड इज माई साइन एक्स. सो ये आ गया 1 माइनस जेड स्क्वायर. So my right hand side in terms of z is 1 minus z square. Now I need pi. pi किसका? 1 minus z square का. So this is a polynomial. So I need to take the least power of d out. So 2 को बाहर लेंगे. 1 plus d square minus 3d by 2. 1 minus z square. आगे तो आप भी प्रोसीड कर सकते हो वैसे. So 1 by 2 into it is 1 plus d square minus 3d by 2 inverse. And along with it 1 minus z square. So this is 1 by 2. If I expand it ना, 1 minus alternate plus minus sign आएगा. एक सेकेंड टर्म और लिख लो, d square minus 3d by 2 whole square, and outside it is 1 minus z square. Take this 1 minus z square inside. So 1 by 2 it is 1 minus z square minus 1 by 2 d square minus 3d 1 minus z square. प्लस देखो d टू द पावर 4 0 रिजल्ट देगा. d स्क्वायर आई मीन 9 बाई 4 d स्क्वायर विल नॉट गिव मी 0 रिजल्ट. 1 माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज लाइक, सो 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 2. इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा माइनस 2z प्लस 9 बाई 4 इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा माइनस 2. So this is equal to 1 by 2 into 1 minus z square minus 1 by 2. It is minus 2 plus 6z and minus 9 by 2. So if I take 2 as LCM, then it is 1 minus z square plus 2 minus 6z minus 9. तो ये आ गया. दिस इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर माइनस 6z. 2 plus 1 3 3 minus 9 is minus 6 divided by 2. यही है क्या?
करेक्ट है, ठीक है। नाउ माइनस जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इट इज ये 6z का साइन सही है, -3 इंटू -2z करेक्ट है यार, 6z आना चाहिए, देन इट विल पी ऑफ माइनस साइन आएगा ना, हाँ माइनस ही है, फाइनल साइन माइनस आएगा, -9 एंड इट इज़ 1 माइनस जेड स्क्वायर, सो 1 + 2 d स्क्वायर -2 सो +2 3 - 9, ठीक है। सो इट इज़ माइनस जेड स्क्वायर -6z -6/2, देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन एरर दिखे तो। सो ये मेरा पी आई आ गया। नाउ रिप्लेस जेड बाई साइन एक्स, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स -6 साइन एक्स -6/2 एंड ये इस वाई को लिख दो CF + PI एंड दैट विल बी माई फाइनल आंसर। सो दिस इज लाइक द प्रोसेस वेयर वी चेंज एक्स इंटू जेड, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं प्रोवाइडेड Q इज गिवन टू बी fx स्क्वायर, सम फंक्शन का स्क्वायर गिवन है तो उस केस में विल टेक dz बाई dx इज इक्वल टू √fx स्क्वायर and from here we find a relation between z and x and using the formula for p1 q1 r1 we change the entire equation into the independent variable z and finally a pi और cf, तो फिर this is like the normal process. So 6th b is also done. Next question, find all possible solutions 7th b. y square log y, this is like those form जो equation solvable for x, solvable for y और solvable for p होती हैं। तो और कितने questions आए हुए हैं, 2 और questions हैं, चलो ये कर लेते हैं। y square log y, next question, y square log y xy dy by dx, that means p plus p square. So this is the equation of higher degree. आप देख रहे हो dy by dx की पावर 1 से ज़्यादा है, so this is the equation of higher degree. So ऐसे questions में अपने पास 4, we have 4 forms, solvable for x, solvable for y, solvable for p. Now this equation is solvable for p as well as for x because x is at a single place in a single power. So I can extract x, I can write x in terms of y and p. तो ये आ जाएगा log y डिवाइड बाई p माइनस p बाई y माइनस p बाई y, ये आ जाएगा हमारे पास x को अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो। सो x इज क्लियरली ए फंक्शन ऑफ y एंड p, सो इट इज सॉल्वेबल फॉर x. our process is you have to differentiate it with respect to y. तो ये आएगा 1/p एज इट इज़ y इंटू 1/y प्लस log y, डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने, प्लस y log y इंटू -1/p स्क्वायर dp बाई dy माइनस 1/y dp बाई dy एंड देन प्लस p बाई y स्क्वायर, ये आ गया। नाउ आई टोल्ड यू कि क्या करना है आपको। सो इट इज़ 1/p प्लस log y बाई p, dp बाई dy को एक तरफ करेंगे प्लस p बाई वाई स्क्वायर। नाउ टेक dp बाई dy कॉमन, सो आई गेट -y log y बाई p स्क्वायर minus 1/y. Now what is dx by dy? It is 1/p. This got cancelled out and take everything to the other side, minus log y by p plus p by y square. And this is quite simple. In fact ये same question हम क्लास में कर चुके होंगे, minus y log y by p square plus 1/y. You can take something common here और चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी. I mean if I take y by p out, then I'll be left with log y by p plus p by y square. So you can clearly see this gone, minus sign also gone.
So I'll get 1 is equal to dp by dy into y by p. This is like the simplest question. All good. So I can write it as dy by y is equal to dp by p. And now this is a first order first degree, integrate करेंगे. So log y is equal to log p plus log c. So from here I got a relation between y and p. I mean y is equal to pc. y is equal to pc. And I told you कि अपना जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो तो x और y में रहेगा. So I have to remove p. तो यहाँ से p को लिख दो y by c and put it in original equation. Put in original equation. Original equation. जब आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो x इज इक्वल टू y log y and p is y by c minus y by c into y. So I'll get the solution as x is equal to c log y minus 1 by c. c log y minus 1 by c. ठीक है. So x is equal to c square log y minus 1. c square log y minus 1. ये आ गया हमारे पास. ठीक है. आप इस c को आई मीन यू कैन कंसिडर इट एज सम अदर कांस्टेंट एज वेल इफ यू वांट इट, है ना. नहीं तो ऐसे भी सही है. ठीक है, ऐसे भी सही है. चल, अब आपको क्या करना है. दिस इज़ माई जनरल सोल्यूशन. दिस इज़ माई जनरल सोल्यूशन. और वो क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड ऑल सोल्यूशंस, ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस. सो इसका सेकेंड सोल्यूशन क्या होगा. इसका सेकेंड सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन होगा. इट्स सेकेंड सोल्यूशन विल बी सिंगुलर सोल्यूशन. ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन. तो सिंगुलर सोल्यूशन या तो P से फाइंड कर दो या C से फाइंड कर दो. P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट, इट्स अप टू यू. जैसे इफ़ यू लुक एट द इक्वेशन इन P, तो P क्या है हमारे पास, p स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर log y इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन इन P एंड दिस इज द इक्वेशन इन C. तो इफ आई फाइंड P डिस्क्रिमिनेंट देन इट इज b स्क्वायर minus 4 times AC. So 4 times minus y square log y is equal to 0. So it is x square y square plus 4y square into log y is equal to 0. So if I take y square common, then it is x square plus 4 log y is 0. Plus 4 log y is 0. ठीक है. तो यहाँ से एक तो मुझे मिला y is equal to 0. दूसरा मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस log y इज़ 0. तो हमें देखना है विच वन सेटिस्फाइज अवर ओरिजिनल इक्वेशन. सो y अगर 0 है दैट मीन्स p इज़ 0. सो इफ़ आई पुट इट इन द ओरिजिनल इक्वेशन तो आई गेट 0 एवरीवेयर. सो 0 इज़ इक्वल टू 0. सो इसका मतलब y इज़ इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है. सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस log y को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो log y इज़ माइनस एक्स स्क्वायर. So 1 by y dy by dx is equal to minus 2x. So यहाँ से p क्या आ गया, minus 2xy आ गया. So इन दोनों को इंसर्ट करो यहाँ. So p is minus 2xy, so 4x square y square minus 2x square y square minus y square into minus x square, because log y is minus x square. You can clearly see 4x square y square. यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस 2xy है ना, माइनस 2xy. सो इट विल बी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस p इज़ माइनस 2xy. सो इट विल बी माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. रुको कुछ गड़बड़ है. यहाँ पर 4 था ना बाबा, ये 4 था. 4 log y इज़ माइनस एक्स स्क्वायर. सो देर वॉज ए 4 हियर. सो इसकी वजह से चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना. सो माइनस एक्स वाई बाई 2 आ जाएगा, minus xy by 2. So p has to be substituted as minus xy by 2. तो ये आ जाएगा x square y square by 4 plus xy into minus xy by 2 minus y square log y is minus x square by 4.
minus x square by 4. So this is x square y square by 4 minus x square y square by 2 plus x square y square by 4. If you observe it, तो ये सारा कुछ कैंसिल आउट होकर मुझे ज़ीरो ही देगा. सो इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस 4 log y इज इक्वल टू 0 इज़ माई सिंगुलर सोल्यूशन. इज़ अ सिंगुलर सोल्यूशन. ये जो सिंगुलर सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, इट इज़ इन द इक्वेशंस विद हायर डिग्री ओनली. ये जो टाइप्स है ना इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x y p क्लेरोट्स फॉर्म, इन दीज क्वेश्चंस ओनली देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर सोल्यूशन. ठीक है, चलो. सो अभी लेक्चर लेंदी हो जाएगा एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द अनदर सेशन. बाकी 2 क्वेश्चंस, एक ये है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ ऑर्थोगोनल. सेल्फ ऑर्थोगोनल में ये 2 क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं. एक तो वो पैराबोला विच वी हैव डन ऑलरेडी 2022 आई गेस, एंड दिस इज़ अनदर क्वेश्चन लैम्डा वाला जो है. सो ये भी हम कर लेंगे. देन देर इज़ दिस क्वेश्चन. उसके बाद आई गेस वी आर डन, और तो नहीं आए होंगे. चलो, so I'll see you in another session for the previous year questions.